Sir, I will talk about first of all, we'll talk about like the central banks and their control of the money. So we'll define central banks and how they control the money, then private banks and क्या कहते हैं, sorry, reserve like the particular like the percentage that private banks own. Then we'll define inflation, and then we'll define how central banks like control the money supply. We'll explain जो पूरा process like आपने बताया था, and like they can print money, so they can like मतलब, and then as they print money like the value goes down, and then that can cause like problems. And then we like explain like different inflations जो हमने last class में बात की थी. And then like Can we also introduce the policies that we can use, this supply side policy, monetary policy? The question is not asking us whether it is the best policy or not. So there is no need for an alternative policy. The question is Okay. purely about how central bank can control money supply, and will that cause inflation, or central bank may not cause inflation. That would be the two sides of this. Evaluation would be that central bank, increase in money supply will not cause inflation. All right, so pretty much we're on the, I think, pretty decent response. So let's break it down for a minute here. सबसे पहले, I think it's always a wise idea to make like a mind map as to what all parts of this particular chapter you want to uh, write about, and then try to narrow down the information, because discussion of commercial bank इधर थोड़ा सा मेरे ख्याल के अंदर जो है irrelevant हो जाता है, because the question is much more specific to central bank and its role in this whole thing. So when I read, this is what I'm thinking, and I'll walk you through my process. Central bank can control the money supply. So I'm thinking in my head, okay, central bank prints the money, central bank gives the money to the government through quantitative easing, even to the commercial banks, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर पैसे इंक्रीज हो सकते हैं as a result. और भी तरीके हैं, जैसे commercial banks does the credit creation wala whole process, but that's not relevant to our discussion over here. Then there is an international flow that we also talk about. That's again not in our scope right now. Abhi hamara focus hai central bank. Somehow central bank is linked to money supply. We know government ka deficit financing. I'm just thinking in my head, there are four sources of money supply, right? You have the government financing through the debt financing. We have the central bank printing the money and increasing the money supply. We have commercial banks doing the credit creation, and we have the international aspect. International count nahi ho raha. Commercial banks I don't want to talk about. Government एक तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है जब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स को बॉन्ड्स बेच के सेंट्रल बैंक से पैसे लेके इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर लेती है. मुझे थोड़ा सा ये भी स्कोप से बाहर लग रहा है, बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल दिस. ये जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्शन आ रही है उसके अंदर. तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का जो रोल है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग से अप्लाई होता है. तो डेफिनेटली देयर इज दिस आइडिया जो हम आगे भी बात करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग की. That is something that I would like to talk about over here. And I think they might talk about the quantity theory of money, but that comes a little later. वो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ. एक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट से भी मनी सप्लाई को थोड़ा सा चेंज कर सकता है. इंटरेस्ट रेट को कम करके मनी सप्लाई बढ़ा के. I do see. So I'll go over that just a bit. So first thing is, this is how I'm shortlisting कि अच्छा जी ये four sources की बात हो रही है, four में से कौन से relevant. उसके बाद, in my analysis, I want to talk about that an increase in the money supply will cause inflation. Therefore, central bank can control inflation.
तो पहला part of this discussion is an increase in the money supply will cause inflation. So I'm thinking A2 में हम आ गए. So the whole discussion of AD curve shifting to the right, prices going up, that's perfect. In fact, I will do that to prove that yes, money supply can increase there, borrowing will happen, interest rates will fall, consumption will go up, investments will go up, possibly government spending will go up, AD increases, shifts to the right, inflation happens. ठीक हो गया, डन हो गया. लेकिन A2 के अंदर हमने एक चीज पढ़ी है विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी. आई थिंक आई एम श्योर कि बैम्फर्ड मस्ट बी टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो इन हिज बुक. इफ नॉट एटलीस्ट हमने तो अपनी डिस्कशन के अंदर तो उसको बात किया है. लेट मी जस्ट सी कि अगर बैम्फर्ड has spoken about it. um, yeah. Even Bamford is on page number 479. Bamford is also talking about quantity theory of money. वो एक अच्छा एक layer add करेगा to our inflation का discussion where the Keynesians and the monetarists will be or maybe can be discussed over here. So I would like to bring that. I'll bring that into the discussion, and then a final evaluation on the part that, central bank is not the only one who is creating inflation. There are other factors also involved in creating inflation, right? So let's break it down before we start writing. Please make sure that you're also writing. A2 is all about repetition and writing. We're going for a 14 mark knowledge, understanding, and analysis. We want to define as many terms as we want for the question, and we want to leave about 6 marks for our evaluation over here. We'll try our best for a level 3 answer, where we'll try to get like 20 out of 20. So let's begin. So first thing, we should define terminologies. A couple of terminologies that I can see is money supply क्या होता है, inflation क्या होता है. I like inflation. Let me just start with inflation first. So please, inflation को आप define करेंगे. We're going to use that basic AS O level की definition that inflation is a persistent, continuous, sustained rise in general price level, yeah, average price level in a given period of time, right? Usually तो Yes. yearly निकलती है, but this is what your definition should be. This is like, वक्त के साथ आप लिखते हो. Um, Sometimes if you want to like elaborate on this idea, I have past के अंदर AS के अंदर तो I've always recommended kids कि don't just give this definition, just add value to it, and maybe just suggest some causes like this will cause the purchasing power of money to fall. You can add a lot of things कि cost of living बढ़ जाती है, standard of living महंगी हो जाती है. I feel कि money के relevant ये सही है कि the purchasing power of money basically falls, जिसकी वजह से standard of living गिर जाता है, something along that line. ठीक है. Second terminology which I feel we can explain is money supply क्या होता है. Again, you can go to Bamford and you can, अगर मैं Bamford से exactly copy paste करूं, तो this is what I would say. Number one, money supply um, is the, ये मैं बिल्कुल Bamford से copy paste कर रहा हूं, is the total amount of money in an economy. It consists of currency in circulation
इसके अंदर बाय द वे मैथड में नहीं लिखा बट आई ऐड ओवर हियर, इसके अंदर कॉइन्स एंड नोट्स, सॉरी नोट्स एंड कॉइन्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लस, सो मनी इन सर्कुलेशन प्लस रेलेवेंट डिपॉजिट्स, जो हम बैंक्स के अंदर जो पैसे जमा कराते हैं, ये उसकी बात हो रही है। डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो आपके पास होते हैं। एंड मेरे ख्याल में तो इसके अंदर M3 भी आना चाहिए, विच इज द रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक के पास रखा होता है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरी बिफोर ऑल्सो, मनी के चैप्टर के अंदर, कि इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स जाके कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे रखाते हैं, एंड कमर्शियल बैंक्स कुछ डिपॉजिट्स जो है वो स्टेट बैंक के पास भी दिखाते हैं। एंड स्टेट बैंक समटाइम्स आल्सो हैव रिजर्व कैश इन हैंड, जब वो बॉन्ड्स वगैरह बेच के जमा करते हैं लोगों से एंड ऑल, सो दे डू हैव रिजर्व्स आल्सो। लेट्स कीप इट टू रेलेवेंट डिपॉजिट्स, पैम्फलेट तक ही रखते हैं इसको। अब इसके अंदर डिस्कशन ये आ जाता है कि आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड मनी और आर वी इवन टॉकिंग अबाउट द नैरो मनी। ठीक है, दैट्स अप टू यू, यू कैन ऐड दैट इफ यू वांट। नैरो मनी के अंदर कॉइन्स नोट्स जो सर्कुलेशन में होते हैं और जो बैंक में पैसे रखे होते हैं आपके, वो काउंट होते हैं। और ब्रॉड मनी के अंदर जो है आप थोड़े से सेविंग्स अकाउंट और इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका नैरो मनी और ब्रॉड मनी के अंदर एक बेसिकली डिस्टिंक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद आई वांट ऑल्सो टॉक अबाउट के सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही है अभी तक हम। I'm just using CB for central bank. So central bank influences uh, the money supply using open market operations. Let me call it OMO just in case अगर मैं आगे कभी इसको यूज करने जा रहा हूं। फिर you have quantitative easing, जिसको हम QE is like widely used terminology for it, and changes in interest rate. Okay. um yeah, सो ये मेरी कुछ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई। थोड़ा सा इसके ऊपर फिर आगे हम बढ़ेंगे, एंड वी वांट टू टॉक अबाउट के किस तरीके से यू कैन ब्रिंग एन इंट्रो। आई वुड राइट समथिंग लाइक, उसने ऊपर बोला है इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट ना। सो बिफोर आई स्टार्ट इवैल्यूएटिंग आई कैन से दैट the statement assumes that since central bank can control the money supply and increase the money supply, causes inflation, central bank can therefore control inflation. Yep, that's what the statement is assuming, that this is what is likely to happen. कि अगर आप वो कंट्रोल कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि आप इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहां पर Sir, हम, या sorry, I'm just going a little थोड़ा मैं आगे like in an evaluation, can we talk about that the statement is like too narrow or too one-sided because inflation is also dependent on like political factors and या श्योर, policies. या Okay. या या एनीथिंग, इट्स ओपन। सो यहाँ पर हम अब डिस्कशन करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की।
तो कुछ पर्सपेक्टिव्स मैं आपके ध्यान में लेकर आ जाऊं, बिकॉज मनी का टॉपिक है, और मनी का टॉपिक आप बात करें और मॉनेटारिस्ट का अप्रोच ना लें तो ये थोड़ा सा गलत हो जाए। एक मॉनेटारिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है जो खास तौर पे 1990s के अंदर मिल्टन फ्रीडमैन के अंडर इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज दे ट्राई टू प्रूव दैट, और हमारे क्वेश्चन के लिए भी बड़ा रेलेवेंट है, कि मॉनेटरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज अ डायरेक्ट लिंक, राइट, बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। उसने तो बोला है भाई, इट्स मिल्टन फ्रीडमैन स्टेटमेंट समवेयर अलोंग दिस लाइन, दैट इन्फ्लेशन इज एनीवेयर एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिनन। कि मनी सप्लाई जितने से बढ़ाओगे उतने से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सॉरी इन्फ्लेशन रेट आएगा। तो अगर आपके पास इन्फ्लेशन हो रही है तो एक्चुअली उसका रूट कॉज इज द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो according, and we're going to use quantitative theory of money for the explanation, that according to the quantity theory of money, QTM, I'll use this abbreviation often now. So according to the quantity theory of money, QTM, money supply times velocity is equals to price times the real output. ये इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट ईच थिंग रिप्रेजेंट्स। एम तो ऑब्वियसली इज मनी सप्लाई, ओके। वी is velocity of circulation. Okay. P is obviously price level, and Y is the real output. अब ये बात हो क्या रही है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझाना क्या चाह रहे हैं हम? ठीक है, हमने क्या इक्वेशन दी है, एम टाइम्स वी, मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी, इक्वल्स टू प्राइस टाइम्स रियल आउटपुट। प्राइस टाइम्स रियल आउटपुट को अगर आप मल्टीप्लाई करो ना, दिस पार्ट पी इंटू वाई, ये बेसिकली आपकी नॉमिनल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। वाई रिप्रेजेंट्स द रियल जीडीपी माइनस द इन्फ्लेशन। जब आप रियल जीडीपी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो दिस इज व्हाट यू गेट। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज बेसिकली कि आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा, हाउ क्विकली डज इट मूव इन द इकोनॉमी। ठीक है, like if I have a 1,000 rupee note, how many times or how quickly this 1,000 rupee notes is going to go from me to my hairstylist, from my hairstylist to maybe a company which makes the products, from that company to a labor, from the labor to maybe like a grocery store. वो 1,000 rupee note कितनी दफा hands change करेगा is the velocity of circulation. I hope you understand, because remember, there are some notes when you touch, you know that it has gone around places. You know, it has changed hands a few times. Then there are certain notes जो आप देख के बोलते हो कि oh, this is a fresh new note, which I'm the first user of that. वो नोट आप जितनी दफा कोई ट्रांजैक्शन करते हो, वो नोट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे मूव करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, if you have a 1,000 rupee note and that 1,000 rupee notes changes hands about 1,000 times, तो दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी के अंदर उसने ऑलमोस्ट 1 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस क्रिएट करती है बाय चेंजिंग हैंड्स 1,000 टाइम्स। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर, क्वांटिटी ऑफ थ्योरी के अंदर, अकॉर्डिंग टू द मोनेटारिस्ट, व्हाट हैपेंस इज कि मोनेटारिस्ट की नजर में there are couple of things which are held sort of constant. ठीक है, now this is what I mean by that.
Let me write. So monetarist view is that V and Y are stable and constant. That means they're not going to change. ठीक है? So based on the theory, money supply times velocity is equals to price times Y. We are saying velocity is constant and real output is constant. इसको मैं आपको बल्कि in fact let me add a diagram also which I usually explain it with the whole concept. So imagine if we have P times price level, you have real output, we have an aggregate demand which looks like this. But according to the monetarists, the long run aggregate supply यानी जो मुल्क की potential है वो perfectly elastic होती है. That's why we're saying Y are stable and constant. अब ये आपका aggregate demand है and let's assume this is the price level. अब based on the equation, if money supply increases by 5%, considering V is constant and Y is constant, हमें ये पता है कि मनी सप्लाई के बढ़ने से बोरोइंग होगी और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा. So you can notice nothing has happened to the full employment levels. The entire impact has been absorbed by the price level going up by 5%. Right? तो ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी चाह रही है कि अगर आप यू नो money supply increase करते हो तो it will directly lead to an increase in the price level. I've done that through the diagram. एक छोटा सा मैंने उसका फॉर्मूला के साथ इस बात को um, sort of I've put it there. इस बात को फिर मैं थोड़ा सा पैराग्राफ के अंदर लेकर आ जाते हैं. That an increase in money supply will primarily lead to an increase in price level as shown in the diagram, that if money supply rises, then borrowing rises and increases aggregate demand. Since LRAS is vertical, the entire increase of money supply leads to higher inflation. प्राइस लेवल्स जो P0 से P1 के ऊपर गए. सो ये मैंने एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के पर्सपेक्टिव से आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस होल थिंग. ऑब्वियसली देयर इज मोर टू इट, इसको हम और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. एक तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात. ओके, so I'll go on and I'll continue that central banks increase in money supply through. अच्छा, ये पॉलिसी कौन सी कहलाई जाती है? आई एम श्योर 100% मार्किंग स्कीम के अंदर दे वुड
वांट टू नो कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो ये कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है. ओके. So we know it's an expansionary monetary policy. So let's write. So in practice, central bank increase money supply through expansionary monetary policy. For example, through एक मैंने बात की थी पीछे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, राइट? थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, the central bank purchases government bonds. Securities is a perfectly correct word to use for it also. ठीक है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स कह लो, सिक्योरिटीज कह लो, फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. अच्छा, जरूरी नहीं है कमर्शियल बैंक से ही खरीदें हैं, इंडिविजुअल से भी खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डेट फाइनेंसिंग की तरफ चला जाता है. सो लेट्स जस्ट लिमिट कि वो जाके सीधा सीधा कमर्शियल बैंक से कह रहे हैं कि ये जो एक्स वाई जी इंडिविजुअल्स के आपके पास पैसे रखे हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग रिस्क फ्री समवेयर सेफ, तो ये पैसे आप हमें दे दें, हम आपको इसके बदले में पैसे दे देते हैं प्रिंट करके, बेसिकली, राइट? इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग. तो दिस commercial banks, uh, this increases commercial banks reserves. अब यहां तक बात आ गई है तो आई थिंक थोड़ा सा कौन उसको भी ले ही आते हैं, द होल credit creation. So reserves enabling enabling them to expand lending through the money multiplier process. I think they might be familiar, they're more familiar with this credit creation के terminology, but it is money multiplier. It's the same thing. ठीक है, process. So yeah, credit creation process. So increased lending. अब जब कमर्शियल बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं, वो वही पैसा उठाते हैं जो अभी सेंट्रल बैंक से लिया है उनको बॉन्ड्स बेच के गवर्नमेंट के. तो increased lending raises banks' deposits, increasing the broader money supply. Just to remind you, if you want to know कि ये हुआ क्या है, so सेंट्रल बैंक्स ने बेसिकली किया क्या कि सेंट्रल बैंक ने जो कमर्शियल बैंक से डील करती है उनको कहा कि आपके पास ये जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रखे हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो आपको पहले इशू किए थे, एक काम करें कि ये बॉन्ड्स हमें दे दें और उसके बदले में पैसे ले लें. अब कमर्शियल बैंक्स के पास जो है डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं पैसों के,
अब वो क्या करेंगे, वो प्रॉबली इस पैसे को आगे लोन आउट करेंगे, इंडिविजुअल्स को देंगे। इंडिविजुअल्स वो पैसे अपने बैंक्स के अंदर लेकर जाएंगे। उसकी वजह से बैंक्स देखेंगे कि हमारे पास और पैसे आ गए, वो और मजीद आगे लोगों को लोन आउट करेंगे। फिर वो जो पैसे लोन आउट किए थे वो लोग जाके अपने बैंक्स के अंदर जाके डिपॉजिट करेंगे। फिर ये वाले बैंक्स देखेंगे हमारे पास पैसे आ गए, वो और मजीद आगे लोगों को लोन आउट करेंगे। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, राइट? दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑब्वियसली इसके अंदर एक रिजर्व रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं थोड़ा सा भी इग्नोर कर दूंगा इधर के लिए। बट दिस इज हाउ वी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर ब्रॉड मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इन अ वे आई हैव, अब जब कमर्शियल बैंक की बात हुई है तो आई विल टॉक अबाउट द स्लाइटली वेरी ब्रीफली, एक उसके ऊपर भी बात कर ले। फिर उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात हुई है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करो, उससे एक्चुअली इंटरेस्ट रेट खुद ही नीचे चला जाता है। सो अब जब लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो reduces the cost of borrowing, and that encourages higher consumption and investment. Then as aggregate demand increases, real output rises in short run. इन्फ्लेशन से लिंक करना चाहिए। डायग्राम बनाते हैं इधर, एक सेकंड। दो डायग्राम्स इधर बन सकते हैं यहाँ पे। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक डायग्राम जो है हमारा, जो हम बहुत ही सिंपल बना सकते हैं, वो ये है। बेस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के केस में, लाइक वी टॉकिंग कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, ये बाय द वे शॉर्ट रन के परस्पेक्टिव से है। सो शॉर्ट रन के परस्पेक्टिव से जब एडी में इंक्रीज आएगा और एडी कर्व राइट पे शिफ्ट करेगा, it will increase the price level and it will increase the real output. I've written it will increase real output, um, and price levels will also rise. Price level will also rise. यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट जरूर लेकर आ जाना चाहिए, बिकॉज एक जो दूसरा डायग्राम जो हमारा इसी पॉइंट के ऊपर एक डिस्कशन में आता भी है, बिकॉज रिमेंबर द क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन। तो आप जितना भी रियल आउटपुट का लिखें, बट यू नीड टू कम बैक टू के इन्फ्लेशन होगी कि नहीं होगी। अगर आपने सर पहली वाली डायग्राम वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, ये समझ नहीं आई। कौन सा वाला? जो अभी ये वाला जो आपने बनाया, एडी वाला? तो इसमें हाँ, इसमें मतलब बेसिकली हुक किया क्या आपने? बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जब इंटरेस्ट मनी सप्लाई आप इंक्रीज कर रहे हो, विच इज द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से मनी सप्लाई कैन कॉज इन्फ्लेशन। तो उसी का एक लिंक है कि जब आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो तो इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं। इंटरेस्ट रेट जब गिरते हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है, सॉरी, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स और इन्वेस्ट बिजनेसेस जो है वो बोरो करते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है, जिससे एडी बढ़ जाता है। मैंने अपने रेगुलर डायग्राम के अंदर एडी को बेसिकली इंक्रीज किया और मैंने प्रूफ सही है, किया मतलब कि प्राइस हाँ, लेवल बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। सही है, absolutely. समझ आ So गई। price level is going up and real output is also increasing as per the requirement of the question. But at the same time, I also want to bring this to attention कि आपका LRAS का कर्व इस तरह का भी हो सकता है,
जब हम डिस्कशन करते हैं तो वी डू से कि देखें एडी के इंक्रीज होने से जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन आए। इन्फ्लेशन उस सूरत में आती है व्हेन वी आर एट पोटेंशियल और नियर पोटेंशियल, एंड इन दैट केस इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस तो फिर इन्फ्लेशन असल में आएगी। लेकिन अगर आप बिलो पोटेंशियल है, परफेक्टली इलास्टिक रेंज में है, तो फिर इन्फ्लेशन हो सकता है कि ना आए। तो आई कंटिन्यू माई राइट अप। एक तरफ तो मैंने समझा दिया कि कैसे शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशन कैन कम। हाउएवर, इफ द इकोनॉमी is operating close to or at full capacity, यानी कि full employment is the terminology that we should be using. तो फिर increase in aggregate demand will mainly cause एडी बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन हो रही है, लेट्स कॉल इट डिमांड पुल इन्फ्लेशन बिकॉज दैट्स द राइट टर्मिनोलॉजी, will cause demand pull inflation rather than increase in real output. As we can see in our diagram, real output को कुछ भी नहीं हुआ, हम वही पोटेंशियल लेवल्स के ऊपर खड़े हैं। एडी ओनली क्रिएटेड इन्फ्लेशन। और यही थोड़ा सा मॉनेटरिस्ट का भी अप्रोच था। केन्जियन का अप्रोच ये हो जाता है कि केन्जियन फील्स के देखें, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फिक्स नहीं होता, जैसे ऊपर मॉनेटरिस्ट कह रहे थे। You can have perfectly elastic level and you can have perfectly inelastic level, दोनों तरफ हो सकता है। तो केन्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल के करीब हो गए तो फिर इट विल कन्वर्ट इनटू इन्फ्लेशन, ओके, अदरवाइज इट मे नॉट। फिर आगे और फर्दर लेके चलते हैं। सो एक तरीके से दिस इज हाउ दे कैन क्रिएट इन्फ्लेशन। तो दूसरी तरफ कंट्रोल की भी बात करते हैं, बिकॉज दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द एनालिसिस के सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं कुछ इस तरह से दैट conversely, if inflation is high, the central bank can reduce money supply by selling government bonds। ये वही ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो गई। एंड रिड्यूस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पैसा ले लिया इकोनॉमी से, ठीक है। सो एंड लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ऑल्सो हायर इंटरेस्ट रेट reduces borrowing and spending, lowering the aggregate demand. This should obviously reduce inflationary pressure. Continue करेंगे। This should reduce inflationary pressure. Okay.
Therefore, through contractionary monetary policy, central bank can control inflation by controlling the money supply. I think that answers our analysis. I think we've pretty much covered everything. We've talked about the definitions. We've spoken how central bank is in power. This is how they create inflation. This is how they control. Basically, control means both sides, ना? It's not just about whether they reduce inflation. So I think ये एक हमारी बात हो गई इसकी. Um, then we should move towards our evaluative statements. ठीक, evaluative statement के अंदर a couple of पहले तो मैं ये मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन की बात कर लेता हूँ जो थोड़ा बहुत केन्जियंस भी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्टेबल है, राइट? सो लिखेंगे, now this is me doing my evaluation for my 6 marks. Yeah, 6 marks is a reasonable percentage, so make sure that you give reasonable. मेरी नजर में कम से कम 3 points explain होने चाहिए. The relationship between money supply and inflation is neither simple nor stable. First, the money supply is difficult to measure because there are many definitions, M1, M2, M3, and मेरा ख्याल में तो बुक्स वगैरह के अंदर I don't think Bamford ने इसको, yeah, narrow or broad. Let me explain. M1 is the narrow money जो transactions के लिए यूज होते हैं, coins, notes, relevant deposits. That's M1. M2 के अंदर M1 इंक्लूडेड होता है प्लस सेविंग्स अकाउंट. तो ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में आ जाते हो आप. तो इसमें ट्रांजैक्शन के लिए M1 भी होता है और सेविंग्स अकाउंट भी आ जाता है जो स्टोर ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म सेविंग्स और डिपॉजिट्स होते हैं. Then you have M3. M3 is basically M2, which has M1 ka portion in it. So M2, coins, notes, bank deposits, um, savings account, short time deposits. इसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, 10 साल 15 साल के जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूसिव होते हैं. एंड फाइनेंशियल innovations can financial innovations can what am I trying to say? I'm trying to say कि जो distinction होती है आपकी liquidity के forms के अंदर वो थोड़ी सी vague हो जाती है, right? So innovations can blur distinctions
between different forms of liquidity. दिस इज व्हाट आई मीन। जैसे अभी मैं बात एक्सप्लेन कर रहा था ना तुमको कि किस तरीके से सेविंग्स अकाउंट भी होता है, फिर एक टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स होते हैं जो पैसे बैंक्स के पास रखे होते हैं बट यू कांट टच फॉर अनदर 10-15 years, तो वो फिर थोड़े से इलिक्विड हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सेविंग्स अकाउंट है जो M2 का हिस्सा है और M1 का हिस्सा नहीं है, लेकिन M2 में जो मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसे होते हैं, आई कैन गो एंड आई कैन विड्रॉ दैट मनी। उसमें लिक्विडिटी रेलेवेंट थोड़ी बहुत होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि उसमें मेरा इंटरेस्ट फॉरगो होने का खतरा होता है। इफ आई टेक दैट मनी, खतरा क्या होता है, आई डू फॉरगो, आई एम नॉट गोना गेट दैट इंटरेस्ट इफ आई टेक दैट मनी आउट इन द मिडल ऑफ द ईयर और समथिंग। तो वहां पे जो है आपकी लिक्विडिटी डिफरेंट हो जाती है। सो देन आई कंटिन्यू। दिस मेक्स targeting the money supply problematic. Because remember, स्टेट बैंक का कंट्रोल है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करना। यहां पर मैं पहला क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि मनी सप्लाई को क्या आप मैनेज, स्टेट बैंक खुद इन इट सेल्फ मैनेज भी कर सकता है? ये मैंने थ्योरी के अंदर एक बात की थी एंड वी डिड मेक द डायग्राम्स, स्लोमन के अंदर इसका डिस्कशन है, द सिंपल मनी सप्लाई का डायग्राम एंड द कॉम्प्लेक्स वाला, जिसके अंदर when we drew the money supply, just to show you, I'll remove it in just a second. Quantity of money versus interest rate. Simple theory said money supply is fixed in a given period of time. लेकिन the complex theory जो Keynesians do take a look at it, इसके money supply जो है, ये short run long run कह लो, चलो ये short run है कि money supply is fixed, long run के अंदर money supply थोड़ा सा forward tilting होता है because there is this whole credit creation का problem that you can experience। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे इस पूरे डिस्कशन के अंदर? क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी को एक दफा लेकर आते हैं दोबारा। जैसे वहां मैंने बड़ी ही आराम से ये अज्यूम कर लिया था कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज नॉट कांस्टेंट। कभी कभार वो वेलोसिटी की जो स्पीड है वो भी तेज हो सकती है। ओके, give me 1 second. So velocity is, it's not constant. Sometimes आपकी speed बढ़ सकती है. Like for example, um, होता क्या है during periods of uncertainty, economic uncertainty, जैसे आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने एक्सपेंडिचर्स को रोक लेते हैं फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन, एंड सो द डिमांड फॉर मनी जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी सो क्विकली बिकॉज दे आर होल्डिंग, सो दैट एक्चुअली स्लोज डाउन द होल प्रोसेस जो वेलोसिटी का होता है समटाइम्स। सो लिखते हैं सर्टेनिटी, households and firms may increase the demand for money causing velocity of circulation to fall। ठीक है, तो एक ये हमारा डिस्कशन हो सकता है। अ, उसकी वजह से व्हाट वी नो इज कि एग्रीगेट डिमांड में नॉट rise okay significantly,
and may not translate into high inflation. Yeah, inflation. वो ये भी हो सकता है. So that could be one of our discussion that we can place in over here. Like I said, कम से कम 3 तो लिखा करो. The third evaluation that I can place is yeah, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई का जो लिंक है आपस के अंदर, दैट इज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल. Increase in interest rate may encourage greater savings. लोग जाके अपने पैसे बैंक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है. और उसकी वजह से आपको पता है, जैसे ही बैंक्स में वो पैसे गए तो क्या हुआ, सर्कुलेशन, वो क्रेडिट क्रिएशन शुरू हो गई, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कमर्शियल बैंक्स के कंट्रोल में है, वो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है. So even if the central bank wants to reduce the money supply, they might actually fail in doing that. So I think that's a very reasonable point that we can write. Third, and that will be my last point. Third, the link between money supply and interest rate is not always predictable if central bank increases the interest rate to lower aggregate demand and reduce inflation, people will save money in banks, causing deposits to rise. This will start credit creation process and increase the money supply. Central banks may not be able to fully control the money supply. तो ये मेरा आई थिंक इवैल्यूएशन का थर्ड पॉइंट हो सकता है. आई थिंक ऑनेस्टली आई कैन थिंक ऑफ मोर थिंग्स कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है वो डिमांड पुल वाली, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की जो इफेक्टिवनेस है वो हो गया. देयर आर अदर रीजंस एज टू व्हाई इन्फ्लेशन हैपेंस. आपको पता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की भी डिस्कशन हो सकती है. आप बाहर से एनर्जी इंपोर्ट करते हो, वो उसकी वजह से महंगी हो सकती है. So you can definitely add that into the discussion, because fiscal policy, I did not talk about fiscal policy. Fiscal policy की expansionary fiscal policy, more government spending, lower taxation, that can cause inflation. I think if Natalia was talking about that, so evaluation के अंदर you can definitely talk about that how there are other policies which may cause inflation and central bank may not be in control of that. फिर उसके बाद honestly time lag का discussion, that's an important one. I think you should definitely always write about monetary. 18 महीने Bamford के हिसाब से 18 महीने लगते हैं, 18 months for inflation to have an impact. Sorry, interest rate changes and money supply changes to have an impact on the economy. तो एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कि monetary policy is the most effective, it can central bank can control inflation, both increase and decrease, but we know that monetary policy in itself has issues, and then you have alternative
ways through which inflation can happen in the economy as well. You have fiscal policy, you have supply side policy, you have time lag, you have और कौन सी हो सकती है जो हमने बात की भी हो मे बी जस्ट ओवरऑल इकोनॉमी अगर अच्छे ट्रिजेक्टरी के ऊपर जा रहा है तो इवन certainty can cause economies to go and spend more. ठीक, सो ये हमारा एक डिस्कशन हो सकता है. तो this is where this essay is going to end.